guys, welcome to Olive Boat. My name is Lakshmi and we'll be talking about World Economic Forum. What all happened in the World Economic Forum annual meeting that happened in Davos, and also इस सेशन में what we'll be looking forward to. See, it's an important event with respect to your RBI examination and in fact for other examination as well. तो हम इस पूरे सेशन में what we'll be looking at, हम लोग देखेंगे कि what all reports were being released. Some important reports are released which I'll be taking up very shortly. इसके अलावा we'll also have a quick discussion about if some alliances were being formed or some upgradation in the already formed alliances have taken place. Apart from this, we'll also have a quick discussion over what is India's stand in the World Economic Forum. So let's begin with the session without further delay. First of all, I would like to request you all, if you have not subscribed to the channel, do subscribe it. Also, hit the like button because इस तरह के videos generally you will miss it because on and off these videos doesn't happen according to the schedule. तो ऐसा हो सकता है that some important event you might skip. Next thing is you can enroll in the regulatory body courses that are there going on live. You can join the super elite or elite course according to your preferences. So you can use the code PREP and 40% off you will get in all the regulatory body packs. Apart from this, why this World Economic Forum is so important for us, for exam also and other ways as well. This was Gautam Adani ji's post on LinkedIn. He said the first major theme of World Economic Forum was about rebuilding trust. Yes, it was about rebuilding the trust that the international community has. Apart from that, the second was about rise of India, and this is true. We'll see shortly why. McKinsey and Company, who was involved in various surveys of this World Economic Forum, highlighted that India is transforming rapidly as one of the fastest growing large economies in the world when it comes to the technology, talent, healthcare and other areas. Its future in 2024 and beyond is worth paying attention to. That is what was highlighted by your McKinsey, international body, right? So that's why this forum becomes important for India. It has certainly increased the stature of India, what India had, and you can use these kind of quotes by either a company or some individual who is very famous as a starting point of your answer or some essay, right? So you can just have a look at this. Next thing. Now let's talk about what is this 54th annual meeting that was held at Davos, Switzerland. So theme was rebuilding trust. It was the 54th meeting that happened from 15th to 19th of January. Okay, what was the agenda? What all things were main point क्या थे जिसके around ये सारी meeting हुई थी? So the first point was achieving security and cooperation in a fractured world. Cooperation was very much required. That was what was highlighted by your meeting. Next thing is creating growth and jobs in the new era. Another thing is AI as a driving force for the economy and society. Lastly, it was a long-term strategy for climate, nature and energy. Specifically, if I talk about World Economic Forum's idea or what it wants that our world should become carbon neutral or nature positive by 2050. This is World Economic Forum's idea behind this strategy of long-term strategy for climate, nature and energy. Let's have a look at this. What all was some awards were also given. इस World Economic Forum में कुछ awards दिए थे. So the first award that was given was a Crystal Award for leadership in food security, in climate change, in environmental conservation addressing thing. So it was given to Idris Elba and Sabrina Elba. So these are the two persons who got this award. This becomes important for your phase 1, guys. Phase 1 में these type of questions are being asked. Now the next thing is Crystal Awards for championing the power of music and its relation to health, community and culture. For that, Renee Fleming got the award. Next thing is your Maya Lin. Maya Lin was honored with the Crystal Award for her extraordinary creativity and talent in combining science, art and architecture and also for promoting nature and environment. All in all, याद क्या करना है? Crystal Award in leadership was given to two Elba sisters. I don't know if Idris Elba is a girl or not. Please confirm it once. I'm really very sorry for that. Crystal Award for championing the power, it was given to Renee Fleming. Crystal Award for extraordinary creativity was given to Maya Lin. So remember this likewise for phase 1.
Now, some important reports were also unveiled in this very event. So the first report was Global Risk Report. We will be taking up this shortly. Next was your Future of Growth Report, then Global Cyber Security Outlook, then Global Cooperation Barometer. So let's have a look at this. With respect to your Global Risk Report 2024, it's an annual report, annually released every year. Whenever this World Economic Forum event happen, उसी time पे ये report unveil की जाती है. It is being shown to the public. So what was there in this very report? It categorizes risk. ये बताता है कि हम अगले 2 साल या फिर अगले आने वाले 10 साल में what all risks are there. तो ये risk को categorize करता है in these 5 parameters. What are these? Economic, environmental, geopolitical, societal and technological. तो इस point of view से it has categorized these risks. तो जो सबसे पहला रिस्क है, इट इज़ बेसिकली अ सर्वे, परसेप्शन बेस्ड सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो इस सर्वे से वो परसेप्शन निकालने की कोशिश करता है कि लोगों को क्या लगता है आगे आने वाले 2 साल में व्हाट विल बी द मेजर रिस्क. सो नंबर 1 रिस्क इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन. या तो इन्फॉर्मेशन गलत है, फॉल्स है, या इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. दैट इज़ द मेन अगले 2 साल में आने वाला है, और इसकी वजह से इंडिया विल बी द मोस्ट इफेक्टेड. दिस इज ऑल्सो बीइंग हाईलाइटेड इन दिस वेरी रिपोर्ट एंड ऑल्सो इन द फोरम. बाय इलेक्शन है इस साल, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो फ्लड होगी मार्केट में. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएगी. अब सही कौन सी है, गलत कौन सी है, दैट विल रिमेन अ मेजर चैलेंज फॉर इंडिया इन दिस वेरी ईयर. एंड दैट्स व्हाई इट्स सेइंग कि अगले 2 साल में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का रिस्क सबसे ज़्यादा है. नेक्स्ट थिंग, कोई नहीं बोल सकता वेदर इवेंट्स, वी ऑल नो. और अगर आप 10 सालों में भी देखो तो वेदर इवेंट्स आर एट नंबर 1. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट ऑल इज देयर. 10th नंबर पे दोनों ही तरफ पे, चाहे 2 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, पॉल्यूशन रिमेन्स एट नंबर 1. सो दिस इज व्हाट द परसेप्शन बेस्ड सर्वे सेज अबाउट ग्लोबल रिस्क. सो लेट्स हैव अ लुक एट what more the report says. The report says that global outlook is certainly deteriorating. What does it mean? लोगों को लग रहा था कि वी आर मोर कोलैबोरेटिंग, वी आर मोर कोऑपरेटिंग, बट प्रॉब्लम क्या हुई है? एक नेगेटिव आउटलुक हैज सर्टनली बीन डेवलप्ड. क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजनल टेंशंस वी हैव सीन इजराइल एंड दिस इजराइल वॉर लाइक सिचुएशन ओनली, अ कॉन्फ्लिक्ट यू कैन से. इसके अलावा यूक्रेन, रशिया, व्हाट ऑल हैपेंड. उसके अलावा अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है, देन नाउ वेरी रिसेंटली ईरान, पाकिस्तान. व्हाट इज इट? इट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिव आउटलुक अबाउट द either the weather conditions or the societal conditions or the inter-country relationships. So that's why a negative outlook is being there. Next thing, AI powered misinformation, disinformation for the next 2 years. Yes, I have already told you, India में election है, 1.4 billion people, 50% penetration, internet penetration is there, and certainly it will be a major threat for India that India has to balance in the coming years. In this year only, because May, April में there will be elections, so we have to cater to this. Now, I'm really very sorry, I had to explain what is global risk. चलो एक बार देख लेते हैं ये global risk जो बोल रहे हैं हो क्या रहा है. What is this global risk? Global risk को certainly global risk report ऐसे define करती है that it is a possibility of occurrence of an event. हो सकता है, they think that this might happen, which could have a negative impact on the GDP or some natural resource या फिर population पे. So this is global risk, very easy definition. I hope you'll know that. Now, 2 things that the report highlighted. One was the negative outlook that is prevalent. The next thing is AI powered misinformation and disinformation. This is also because of the boom in the generative AI chatbots. What is this? ChatGPT है, Bard है. सिंपल एक वर्ड डालो और बोलो उसको कि मेरे लिए एक पोस्ट लिख दो, वो झटपट लिख देगा आपके लिए पोस्ट. अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है? यू नाउ डू नॉट नीड अ स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पर्सन. आपको एक स्किल्ड इंसान की ज़रूरत नहीं है. इवन अ सेमी स्किल्ड या फिर थोड़ा सा भी कम पढ़ा लिखा इंसान जाए चैट जीपीटी का यूज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन एकदम स्किल्ड तरीके से लिख सकता है, एंड देन उसको पूरे मार्केट में सर्कुलेट कर देगा विद इन फ्यू सेकेंड्स. एंड दैट्स वाई मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन रिमेन्स द मेजर थ्रेट नॉट ओनली टू इंडिया बट ऑल्सो टू द वर्ल्ड. बट इंडिया के बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस साल इलेक्शन है. दैट्स वाई. Next thing, there are 4 structural forces that are shaping the global landscapes as highlighted by your global risk report. What are those? Climate change, we all know. Demographic bifurcation, there is global tension है ना, 2 communities के बीच में काफ़ी tensions है, that's why. Next thing is technological acceleration. We are seeing technology is growing every day. And then geostrategic shift, definitely
पोलराइजेशन हो रहा है वर्ल्ड का, यू नो एक ग्रुप है चाइना लेड एंड द अदर ग्रुप इज गोइंग अदर वेज, सो यू नो पोलराइजेशन इज व्हाट इज हैपनिंग एंड जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स आर आल्सो हैपनिंग. वी हैव सीन द केस विद इंडिया मालदीव्स हैपनिंग वेरी रिसेंटली. सो ऑल दिस इज व्हाट इट इज चेंजिंग ऑफ यू नो द जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री. नेक्स्ट थिंग, एनवायरमेंटल रिस्क किसी से छुपा नहीं है, मेजर कंसर्न है, चाहे आज ले लो चाहे कल ले लो, you know this remains the top 3 concerns, and also it is being said that it will have an irreversible consequence on our mother earth. So that's the next thing is your economic strains and inequality. Global risk report highlight that cost of living will certainly rise. Because of this, inequality is also going to rise, economic uncertainty will also be there, and majorly the low income countries and the middle income countries will be the most who will be affected. सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होगा? जो लो या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, दोज विल बी द वन जो ज़्यादा अफेक्ट होंगे, डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट होंगे. दैट हाईलाइट्स दैट इनइक्वालिटी will persist and also will keep on rising. Next thing, security risk, technological advances. It says कि जैसे जैसे you know हम technologically advance होते जा रहे हैं, cyber security and all this risks are very much prevalent in the society. Also interstate armed conflict was what was being highlighted, and शायद यही reason है there is you know this conflict between Iran and Pakistan which is emerging and other countries as well, जैसे आपका इजराइल वाले तरफ पे भी हो रहा है. What is it? It is armed conflict only. Armed conflict से शुरू हुआ and then you know एक full blown conflict हो गया and then you know these ideologies just came in between. So this is another risk highlighted. Now क्वेश्चन आता कैसे है आरबीआई में कि रिकमेंडेशन क्या दी थी उस रिपोर्ट ने. तो रिकमेंडेशन पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो 4 रिकमेंडेशन दी थी और उन्होंने हेडिंग भी यही लिखी हुई है, लोकलाइज स्ट्रैटेजीज. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इट हाईलाइट्स कि लोकलाइज स्ट्रैटेजीज आर मस्ट. हम लोग ऊपर से स्ट्रैटेजी बना के नीचे पर्कुलेट नहीं कर सकते, हमें अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉपुलेशन को असेस करना होगा एंड वी हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. हमें अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी कंस्ट्रक्ट करनी होगी. सो देयरफॉर लोकलाइज स्ट्रैटेजीज विल रिमेन मस्ट फॉर यू नो हैविंग इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए. क्योंकि जैसे इंडिया है, इंडिया को क्लाइमेट चेंज से बहुत रिस्क है, इंडिया को इस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रिस्क है, तो हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे. हो सकता है यूरोप में या फिर अमेरिका में इनइक्वालिटी का उतना बड़ा रिस्क ना हो, तो वो बाकी किसी चीज़ को लेकर लोकलाइज्ड पॉलिसीज़ बना सकते हैं. तो दैट इज़ व्हाट वाज बीइंग हाईलाइटेड. नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक थ्रू एंडेवर्स. दैट सिंपली मीन्स R&D होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. दैट वी फोकस ऑन यू नो रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन. अगर क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट करना है, हमें मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज, तो हमें बहुत ज़रूरी होगा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, हम नई नई स्ट्रैटेजीज़ लेकर आए, सो दैट जैसे जैसे वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, हम भी उसके साथ यू नो साथ चेंज हो पाएँ. अदर थिंग इज़ जैसे जो साइबर सिक्योरिटी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इन सब का जो रिस्क है हम तभी केटर कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा एडवांस हो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम एस्टैब्लिश करें अपने आप को या फिर इन्वेस्ट करें. नेक्स्ट थिंग इज कलेक्टिव एक्शंस. सी इंडिविजुअली अगर मैं एज एन इंडिविजुअल सिटीजन कुछ करूं तो हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, एक सिंगल कंपनी कुछ करे तो हो सकता है फेल हो जाए, पर जब हम मास लेवल पे करते हैं, एक क्रिटिकल मास लेवल पे अगर कुछ भी करा जाता है तो डेफिनेटली इट विल हैव यू नो वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन दिस ग्लोबल रिस्क रिडक्शन. अगर हमें बड़ा इम्पैक्ट चाहिए तो हमें मास लेवल पे काम करना होगा. इंडिविजुअल लेवल से मे बी हम लोग वो नीडल जो रिस्क रिडक्शन की नीडल है उसको हम अकेले नहीं उठा पाएंगे, या यू नो वी कैन नॉट मूव दैट ऑल अलोन. सो दैट्स वाई क्रिटिकल मास या फिर कलेक्टिव एक्शंस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट थिंग दैट इट हाईलाइटेड वाज क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन. टेररिज्म को कंट्रोल करना हो, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना हो, या और भी किसी ग्लोबल रिस्क को, साइबर सिक्योरिटी हो या कुछ भी हो, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन इज मस्ट. पाकिस्तान अपने वहाँ से यहाँ पे टेररिस्ट भेजता रहेगा, कोलैबोरेट नहीं करेगा, तो हमारे बीच में हमेशा टेंशन्स रहेंगी ही रहेंगी. सो दैट इज़ यू नो व्हाट डज दिस क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन मीन्स. हमें अपनी नियर अबाउट कंट्री के साथ फॉर सिक्योरिटी, फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर क्लाइमेट चेंज एंड फॉर अदर इवेंट्स एज वेल बहुत ज़रूरी है दैट वी कोलैबोरेट एंड दैट टू क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वॉज रिगार्डिंग फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024. अब ये रिपोर्ट क्या कहती है?
This report says that most economies are growing in a way that are neither sustainable nor inclusive. तो growth तो हो रही है, GDP भी बढ़ रहा है, but the problem is neither they are sustainable nor they are inclusive. It says कि जो high income countries हैं, they are performing good on innovation, पैसा ज़्यादा है ना, innovate कर पाते हैं, R&D कर रहे हैं, inclusion भी वहाँ पे better है, मतलब कि अगर ग्रोथ हो रही है तो सबकी हो रही है, रिचर इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर, ऐसा नहीं हो रहा है, इंक्लूसिव है, इंक्लूजन है. वाइल द लोअर इनकम कंट्रीज दे आर बेटर इन सस्टेनेबिलिटी. स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं, इट सेज इंडिया एंड कीनिया स्कोर्ड हाई ऑन सस्टेनेबिलिटी, दैट इज व्हाट वाज बीइंग हाईलाइटेड. तो हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल चीज़ें ज़्यादा हैं. Our government is more focused upon sustainability part. So all in all इसको देख के समझ में आता है कि आपकी फ्यूचर ग्रोथ रिपोर्ट इन 4 फैक्टर्स को एनालाइज करती है. व्हाट इज इट? इनोवेटिवनेस, इनोवेट कितना हो रहा है, इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस. इंडिया यहाँ पे बेटर करता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, दूसरी जो रिपोर्ट आई थी, अच्छा इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन दी थी. इट वॉज ओनली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जहाँ पे काफ़ी सारी रिकमेंडेशन थी, 4 रिकमेंडेशन थी. Next thing is your global cyber security outlook, also given by a World Economic Forum with your Accenture, in collaboration with Accenture. तो Accenture के साथ मिलके global cyber security outlook निकाली थी. Here 90% of जो cyber leaders हैं, they say, जो कि इस meeting में आए भी थे, they said that ecosystem requires urgent attention because there is inequity that is prevalent. जिसको तो cyber security resilient है, उसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को मैनेज करना आता है, वो तो कर रहा है, इट इज़ ग्रोइंग. बट जिसको नहीं आता वो डेफिनेटली इन कमिंग ईयर्स इट विल बिकम अ ग्लोबल थ्रेट. बट ऑल इन ऑल याद क्या करना, इतना याद कर लेना, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक बाय योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इन कोलैबोरेशन विद एसेंचर. सो दैट्स हाउ यू मस्ट रिमेंबर दिस. नेक्स्ट थिंग, ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर असेस कर रहा है कि किस लेवल पे कोऑपरेशन है, ऑल्सो गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विद योर मैकेंजी एंड कंपनी. मेथडोलॉजीज क्या थी, तो 42 इंडिकेटर्स हमने यूज़ किए हैं एंड 2012 से 2020 का एक कोलैबोरेटेड रिपोर्ट है, उसके अंदर 5 पिलर्स के पे असेस किया है. व्हाट आर दीज 5 पिलर्स? तो 5 पिलर्स है आपके ट्रेड कैपिटल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड नेचर कैपिटल, देन हेल्थ एंड वेलनेस एंड देन पीस एंड सिक्योरिटी. तो ये 5 पिलर्स हैं. अब बोलते क्या हैं, they say that trade and capital cooperation बढ़ी थी during the pandemic time, but 2023 में certainly cooperation वापस से कम हो गई है. Why? Because of the global tensions, हमने देखा है, again the war like situation and all that. Next thing is innovation and technology. Yes, innovation हुई है, टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, लाइक योर जनरेटिव एआई, अब इसको टैकल कैसे करें, उस मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड होगी उसको कैसे टैकल करें, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को कैसे टैकल करें, दैट विल बी एन इशू. नेक्स्ट थिंग इज क्लाइमेट एंड नेचर कैपिटल. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचर इज ऑल्सो चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली. अब इसके बेसिस पे कोऑपरेशन जो है वो भी थोड़ा तो बड़ा है, बट वो उतना नहीं है कि हम इस जो थ्रेट है उसको केटर कर पाए. नेक्स्ट थिंग इज हेल्थ एंड वेलनेस. अगेन हमारा जब पैंडेमिक आया था, वी वर मोर कोऑपरेटिव, हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, बट रीसेंट पास्ट में इन द ईयर 2023 वी हैव सीन कि वी आर गोइंग बैक टू आवर हिस्टोरिकल पैटर्न्स, वी आर मूविंग बैक टू दैट deglobalization thing with respect to your health and wellness. Lastly, it's your peace and security. If I talk about peace and security, over here it is being seen that certainly ये तो सबसे ज़्यादा decline कर रहा है. We have seen the global tensions. So same way you can just एक एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ऑल इन ऑल रिपोर्ट्स के मामले में ओनली दिस वॉज देयर. अवार्ड्स डिस्कस कर लिए, रिपोर्ट्स डिस्कस कर ली. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर हाईलाइट्स. तो एक फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन फॉर इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो देयर. इसको 100 कंपनीज ने ज्वाइन किया है. सो व्हाट इज दिस फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन फॉर इंडस्ट्री? ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही लॉन्च हुआ था. सो नाउ इट इज ऑफ 100 कंपनीज दैट इज देयर. इट स्पेसिफिकली फोकस ऑन डीकार्बनाइजिंग द हैवी इंडस्ट्री. जो हैवी इंडस्ट्री है या फिर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे आपके शिप हो गए एंड ये इन सब पे, दे वांट कि इसको डीकार्बनाइज किया जाए बिकॉज 30% ग्लोबल एमिशंस यहीं से आता है. दैट्स वाई इसको डीकार्बनाइज करने के लिए दिस इनिशिएटिव वाज बीइंग लॉन्च्ड बाय कंपनीज ओनली बट एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम.
नेक्स्ट थिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठने वाली कई सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट 100 कंपनीज ने दे हैव अनाउंस्ड दैट दे विल बी प्लांटिंग 12 बिलियन ट्रीज, देयरफॉर ट्रिलियन ट्रीज प्लेटफॉर्म इसका नाम है. नेक्स्ट थिंग इज गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन. Giving to amplify earth action is also by a World Economic Forum, where World Economic Forum pledged that it will raise 3 trillion annually. हर साल 3 trillion would be raised ताकि हम नेट ज़ीरो भी हो सके और 2050 तक हम बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर भी कर सकें. Another initiative, network to mobilize clean energy investment. क्लीन एनर्जी को बढ़ाया जाए इन द ग्लोबल साउथ. इसमें बेसिकली आपकी जितनी भी कंट्रीज हैं वो ग्लोबल साउथ की ही हैं. इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, नाइजीरिया, ऑल दीज कंट्रीज आर ओवर देयर. एआई गवर्नेंस अलायंस वाज आल्सो बीइंग फॉर्म्ड. ये नई अलायंस है जो फॉर्म हुई है. एआई के गवर्नेंस को, पॉलिसी स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट फ्रेमवर्क को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है. देयरफॉर एआई गवर्नेंस अलायंस वाज बीइंग लॉन्च्ड. नाउ इफ़ आई हैव टू टेल यू कि ये जो अलायंस है, दिस एआई गवर्नेंस अलायंस, इस अलायंस की खास बात क्या होगी? तो पॉलिसी मेकिंग पे फोकस करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन पे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेगी ताकि एलीट्स को ही ना मिले, लोअर सोसाइटीज़ और बाकी सबको इसको यूटिलाइज कर पाए. द लो इनकम कंट्रीज भी तक भी ये पहुँचे, इसका बेनिफिट. दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर, एंड एनहांस्ड एक्सेस विल ऑल्सो बी वन फोकस. लास्टली, अलायंस फॉर अर्बन इनोवेशन. तो अर्बन सेक्टर में इनोवेशन के लिए दिस इज़ देयर, अर्बनाइजेशन इज़ हैपनिंग एंड दैट्स वाई दिस वाज अनाउंस्ड. अभी अनाउंस हुआ है, इसका फर्स्ट कोहोर्ट होगा, मतलब फर्स्ट मीटिंग कोहोर्ट, यू कैन से जस्ट अ मीटिंग विल बी हेल्ड, एंड व्हेन इट विल बी हेल्ड सर्टेनली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, वील टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. बट ये याद रखना, अलायंस फॉर अर्बन इनोवेशन वाज बीइंग लॉन्च्ड या फिर वाज बीइंग अनाउंस्ड एट दिस वेरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ओनली. नेक्स्ट थिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सेंटर्स बना रहा है. वैसे तो मैंने काफ़ी बार क्लास में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिस्कस किया है, बट लेट्स डिस्कस इट अगेन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 was regarding steam power and mechanical mechanization. 2.0 was regarding mass production. 3.0 was regarding internet systems, our computer systems and all. 4.0 is regarding the generative AI, Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, robots, robotics and all that. So we are over here now. We have certainly passed all the 3 stages of industrial revolution. So since we are here, Center for Excellence were to be established. Therefore 4 new Center of Excellence will be joining. 4th वाले के साथ अभी मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, बट सर्टेनली हो ही जाएगा आगे भी. जर्मनी किस चीज़ पे फोकस करेगा? जर्मनी विल फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. वियतनाम विल फोकस ऑन ग्रीन ग्रोथ. Qatar will focus on sustainable development and economic competitiveness, and Ukraine will focus on digital transformation of government and digital literacy. Learn this, important. Next thing, Reskilling Revolution Initiative was also launched, in which reskilling was being focused at. So closely 680 million, more than 680 million people were reskilled using this, using advanced skilling tools and also the education jobs and for that. Next thing is your Refugee Employment Alliance. So all the refugee, unko employment ke liye an alliance was being formed by your World Economic Forum only, and that is also a part of your agenda, where it wants ki additional 1.25 lakh additional refugees should get employment by the year 2027. Next thing was Global Alliance for Women's Health was also launched, in which it was being focused that अगर women की health अच्छी होगी, अगर ये जो gap है, हेल्थ में जो गैप है, अगर हम उसको एड्रेस करें, देन ग्लोबल इकोनॉमी कैन ग्रो बाय एट लीस्ट 1 ट्रिलियन एनुअली बाय 2040. So you can use this type of data, you can use this type of data when you are presenting your answers, your essay. So please try and remember this. ये अच्छे quotes हैं जो आप use कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, अपने essay राइटिंग में. So that's why I am highlighting this. इसको याद कर लेना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा. हाँ, ये पूछ सकता है कि ग्लोबल अलायंस फॉर वुमेन्स वर्ल्ड कहाँ पे लॉन्च हुआ था, ये किससे एसोसिएटेड है. येस, इट इज एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. पर ये जो इसके नीचे ये बात बोलता है ना, या बहुत ही कॉन्फिडेंटली कभी भी एग्जाम में किसी भी वुमेन से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आया तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो, एंड इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल आंसर. नेक्स्ट थिंग, एक डिजिटल FDI इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2022, एंड रिसेंटली इन दिस वेरी फोरम इट वाज सेड दैट ओमान एंड साइप्रस विल आल्सो बी जॉइनिंग दिस वेरी इनिशिएटिव. नाउ इंडिया के पोटेंशियल के बारे में
तो मैंने पहले ही बता दिया था व्हाट गौतम अडानी सेड एंड देन व्हाट मैकेंजी सेड. बट सर्टेनली इंडिया ने क्या किया है जो एकदम रिमार्केबल है. कल की क्लास में भी बात करी थी. अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी वाज बीइंग लॉन्च्ड बाय इंडिया ओनली विद योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें नेटवर्क पार्टनर रहेगा. इंस्टीट्यूशनल पार्टनर इंडिया की तरफ से इन्वेस्ट इंडिया है. इसको एंकर कौन करेगा या इसको हाउस कौन करेगा, मीटिंग्स कौन करवाएगा, तो आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसमें भी सेंटर ऑफ वुमेन लीडरशिप विल बी डूइंग दिस. इसमें जो सपोर्ट है either financial or some other support will be given by a Bill and Melinda Gates Foundation. And in this very World Economic Forum, इसको बहुत सारी लीडिंग इंडस्ट्री लीडर्स ने इसको मूव किया था, इस आइडिया को. एंड यू नो क्लोज टू 10,000 पार्टनर्स आ देयर, तो सारे के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत सारी कंपनीज थी. इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, इन्होंने डावोस में अपनी प्रेजेंस फील कराई है. एंड they call themselves as tech hubs for manufacturing and AI. We all know, आपका कर्नाटका हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, हैदराबाद, आपका बैंगलोर, ये तो AI के हब्स ही हैं. सो दैट्स वाई FDI भी इंडिया में बड़ा है. इट इज़ बीइंग सीन कि हमारा FDI 36 बिलियन विच वॉज इन 2014, हमारा 36 बिलियन से ऑलमोस्ट डबल हो गया है इन द ईयर 2023. दिस इज़ वॉट वॉज बीइंग हाईलाइटेड कि इन 9-10 सालों में हमारा FDI ऑलमोस्ट डबल हुआ है. So these were some of the newspaper clippings that were there, and also ये जैसे आपका PIB में था regarding how you know India is standing itself. तो मैंने सबकी एक समरी बना दी है. इस पूरी समरी के अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना. और these are some of the important reports of your World Economic Forum. Just have a look at this, क्योंकि नाम भी तो याद होने चाहिए ना, कौन कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है. So these are your World Economic Forum report, and that's all from my side. Thank you and have a nice day. सेशन पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरह के सेशन और चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.